سانحہ مچ کے متاثرین 5ویں روز بھی وزیر اعظم کے منتظر. ورثاء کا کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر شہداء کی میتیں رکھ کر دھرنا جاری. غمناک چہروں کی بھیگی آنکھوں کے ساتھ شدید سردی میں انصاف کی دہائی. پوری قوم سوگوار ہے، لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا، لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے. وہ اپنی لاشیں 5-6 دن سے سڑک پہ رکھ کر اس سردی میں قوم کی مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے انتظار میں، اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. سانحہ مچ کے متاثرین حکومتی داد رسی کے منتظر ہیں. وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے شخص کو ذرا احساس نہیں، وہ سخت سردی میں بیٹھے ورثاء کے سروں پر ہاتھ رکھتے. قومی سانحے پر سیاست نہیں کی جا سکتی. مریم نواز لیگی رہنما کچھ ہی دیر میں کوئٹہ پہنچیں گے. سانحہ مچ کے متاثرین کا دکھ بانٹنے کے لیے بلاول کوئٹہ روانہ. ہزارہ برادری کے ساتھ یکجہتی کے لیے دھرنے میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کو مظلوموں کے مطالبات تسلیم کرنے چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی. سانحہ مچ کے متاثرین سے یکجہتی کا اظہار. کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنا. اسلام آباد، لاہور، ملتان سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاج جاری. سفاک قاتلوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ. وزیر اعظم کا کل لاہور آنے کا امکان. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات شیڈیول. عمران خان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے. شکست خوردہ عناصر پہلے دن ہی سازشوں میں مصروف. عوام نے ہارنے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیا. نیا پاکستان آگے بڑھتا رہے گا، تبدیلی کی راہ پر آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. گورنر پنجاب سے شہباز گل کی ملاقات. سیاسی امور پر بات چیت. اپوزیشن کے جلسوں سے حکومت خوف زدہ نہیں ہے. پی ڈی ایم ذاتی ایجنڈے پر گامزن ہے. معاون خصوصی کی گفتگو. سیاسی مخالفین کو 2023 کے عام انتخابات کے انتظار کا مشورہ. پی ڈی ایم ٹولہ این آر او کے لیے در بدر. عوام کے ٹھکرائے گھر کے رہے نہ ہی گھاٹ کے. راج کماری اور کنیزیں ہوس اقتدار میں ماری ماری پھر رہی ہیں. استیف اور لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل چکی. فردوس عاشق عوان. کورونا ایک اور سیاستدان کی جان لے گیا. نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین ستی مہلک وائرس سے جاں بحق. وہ سی ایم ایچ راولپنڈی میں وینٹیلیٹر پر تھی. کورونا کی دوسری لہر کا زور برقرار. مزید 50 افراد جان سے گئے. اب تک 10,511 اموات، 2,482 نئے مریض. مہلک وائرس سے 4,95,075 شہری متاثر. ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,049 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے خلاف فیصلہ کل عدم. سپریم کورٹ نے معاملہ پشاور ہائی کورٹ کو واپس بھجوا دیا. چند سول سرونٹس کے تحفظات پر قانون غلط قرار نہیں دیا جا سکتا. صرف وضاحتوں سے قانون چیلنج نہیں ہوتے. چیف جسٹس گلزار احمد. افغانستان سے حملے میں سپاہی فضل واحد کی شہادت. دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین کے استعمال کی مذمت. پڑوسی ملک دہشت گردوں کے خلاف فوری کارروائی کرے. ترجمان دفتر خارجہ. کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کا مشن. محمود آباد نالے کے اطراف چوتھے روز بھی آپریشن جاری. غیر قانونی تعمیرات میں مسمار. ہیوی مشینری کا استعمال. السلام علیکم. دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض. سید عائشہ ناز. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानहा मच के मुतासरीन 5वें रोज भी वजीर आजम इमरान खान के मुंतजिर हैं। वुरसा का कोयटा के मगरबी बाईपास पर शोहदा की मैयतें रखकर धरना जारी है। गमनाक चेहरों की भीगी आंखों के साथ शदीद सर्दी में इंसाफ की दुहाई। जी, आज 5वां रोज है और मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद हैं। डेड बॉडीज उन्होंने रखी हुई हैं। एक ही मुतालिबा है कि वजीर आजम खुद पहुंचेंगे, उनसे बात होगी तो उसके बाद ही तदफीन करेंगे। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं अक्सा मीर से। अक्सा, बिलावल और मरियम के पहुंचने की तलात थी, क्या वो कोयटा पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा था कि धरना उसी वक्त ही खत्म होगा जब वजीर आजम साहब आएंगे, लेकिन वजीर आजम साहब तो अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर अब तक ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो कोयटा पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में ही वो यहाँ पर आएंगे, इनके साथ इज़हारे यकजहती करेंगे। जबकि जो मुख्तलिफ ज़रायों से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि मरियम नवाज भी यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगी। धरने की जो सूरत हाल है इस टाइम काफी यहाँ पर रश है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर, बच्चे, बूढ़े और ज़ईफ अफराद की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि धरने में बैठे शुरका का ये कहना है कि आज 5 रोज गुजरने के बावजूद भी इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं आए। वो यहाँ आए, उनके साथ बैठे, उनके गम में उनका साथ दे और उनके गम को थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन यहाँ पर धरने में बैठे जो शुरका हैं और लवाइकीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान यहाँ नहीं आते हैं तो मैयतें उठाकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सानिया मच के खिलाफ यहाँ पर हजारा बरादरी का जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन धरने की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से बरकरार है जैसे पहले रोज ही था। यहाँ पर तमाम तर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जबकि पीडीएम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज समेत जो दूसरे रजाकाराना तौर पर वहाँ मुस्लिम लीग जो नून के लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, इज़हारे यकजहती करेंगे। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। आया इतलात तो ये हमें मिल चुकी है कि वो कोयटा पहुंच चुके हैं। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना गफूर हैदरी, वो इस टाइम धरने में पहुंच गए हैं और इनसे इज़हारे यकजहती का वो इजहार कर रहे हैं। जबकि जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे ये बातें सुनने में आई हैं कि आज मतवक्की है कि इमरान खान साहब यहाँ पर आए, इनके धरने में बैठे, इनसे बात करें। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे तदफीनें नहीं की जाएंगी और धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जी शुक्रिया समीर। हमारी रिपोर्टर तो तफसीलात से आगाह कर ही रही थी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कुछ देर में कोयटा पहुंचेंगे और हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए इस धरने में दोनों रहनुमा शरीक होंगे। सानिया मच के मुतासरीन हुकूमती दाद रसी के मुंतजिर हैं। मरियम नवाज ने लाहौर से रवाना होने से पहले गुफ्तगू की और कहा कि वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शख्स को जरा एहसास नहीं है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कहते हैं कि वजीर आजम को मजलूमों के मुतालबात तस्लीम करने चाहिए, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस धरने में शिरकत करेंगे और जो भी मुतासरीन हैं उनकी जानिब से पहले भी मरियम नवाज मीडिया टॉक में ये कह चुकी हैं कि मैं नवाज शरीफ का पैगाम लेकर उनके पास जाऊंगी और मेरी उनसे गुजारिश है और इल्तिजा है कि वो मैयतें दफना दे, और यही नवाज शरीफ का पैगाम भी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सानहा मच के मुतासरीन हुकूमती दाद रसी के मुंतजिर हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे शख्स को जरा एहसास नहीं कि सख्त सर्दी में बैठे वुरसा के सरों पर हाथ रखते। उन्होंने कहा कि कौमी सानहे पर सियासत नहीं की जा सकती। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रही थी। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। ये जुल्म उनके साथ बहुत देर से होता आ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। रियासत माँ की तरह होती है, जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पर बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चलें आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रख कर इस सर्दी में कौम की माएँ, बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। खबर दें आपको कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये बताना है DGISPR का। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ये तफसीलात भी फराहम की गई हैं। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ये बताना है DGISPR का।
अस्करी मैदान में फतूहात का ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुताद्दिद इक़दाम किए जाते हैं। इसी सिलसिले की ये कड़ी कि पाकिस्तान की जानिब से फ़तेह मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। मिज़ाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया और इसके बारे तफसीलात DG ISPR ने शेयर की हैं। मिज़ाइल की जानिब से कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया गया है। इसकी रेंज क्या है और इसकी दीगर तफसीलात के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक की अपडेट्स यही हैं और इसकी बाबत मज़ीद तफसीलात से हमें इमरान आगाह करेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट है। ये फतेह मिसाइल सिस्टम जो आज मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर तैयार करदा पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की अपनी महारत का मुंह बोलता सबूत है, जिसे आज टेस्ट फायर किया गया और कामयाबी से इसने अपने हदफ को निशाना बनाया। बुनियादी तौर पे ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और 140 किलोमीटर तक जो है वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस हवाले से ये एक अहम डेवलपमेंट है। वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ये मिसाइल सिस्टम तैयार किया है। इस मिसाइल सिस्टम की जो तैयारी के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो दुश्मन के इलाके के अंदर जो है डेप्थ को मजीद कम कर दिया और पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब दुश्मन के इलाके के अंदर ज्यादा डीप जाकर जो है वो इसके हवाले से जो है वो दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है, एनिमी को टारगेट कर सकती है और ये अपने हदफ को प्रिसीशन जो है वो मिसाइल है जो अपने टारगेट को कामयाबी के की सलाहियत रखता है, एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मोहम्मद इमरान, आपका बहुत शुक्रिया।